7 کلمے ہیں یہاں پر، اور ان 7 کلموں میں کچھ نہ کچھ جو ہے میرے اور آپ کے لیے موجود ہے، اور میرے لیے جو ہو سکتا ہے این ممکن ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو، اور جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے این ممکن ہے میرے لیے نہ ہو۔ ہم سب کے لیے میسج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک میسج اگر 20 منٹ کا 30 منٹ کا گھنٹے کا ہے تو اس پورے میسج میں سے آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ میرے لیے کیا ہے، خدا مجھے کیا دے رہا ہے، آمین جی، خدا مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ اور اگر میں یہاں آؤں اور سیکھ کے کچھ نہ جاؤں تو میں ایک نکما اسٹوڈنٹ ہوں، ایک نکما اسٹوڈنٹ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ طالب علم کا کام ہے، جو طالب علم ہے اس کا کام ہے وہ علم سیکھے۔ طالب کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کی جستجو کرنے والا ہو، جو کسی چیز کی لگن کرنے والا ہو، طالب وہ ہوتا ہے۔ اور طالب علم جسے علم کی جستجو ہو، آمین۔ اور اگر آپ کو علم کی جستجو ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ہیڈ نالج جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ اسے اپنی لائف میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری لائف جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے عمل میں سے گزرے، تبدیلی کے عمل میں سے گزرے، اور ہر روز میں پاک روح کی رہنمائی میں چلتا ہوا نیا ہوتا چلا جاؤں، نیا ہوتا چلا جاؤں، نیا ہوتا چلا جاؤں، خوبصورت ہوتا چلا جاؤں، آمین۔ تو یہ خوبصورتی کا پروسیس ہے، یہ خوبصورتی کا ایک عمل ہے، اور یہ خوبصورتی کا عمل صلیب سے شروع ہے۔ جس طرح پاسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے اوپر اتنے ظلم و استبداد کو برداشت کیا، اس کا چہرہ ڈسفگرڈ کیا گیا کتاب مقدس کے مطابق، اس سے روندا گیا، اسے کچلا گیا ہے تاکہ میں اور آپ آہستہ آہستہ ہر روز خوبصورت ہوتے چلے جائیں، اس کے اس بہے ہوئے لہو کے سبب سے، اس کے اس کفارے کے سبب سے جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دیا ہے۔ اور یاد رکھیے خوبصورتی اٹس اے پروسیس، یہ ایک عمل ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈن جسٹ اوور نائٹ، یہ ایک رات میں نہیں ہوتا۔ خوبصورتی یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے، and یہ کنٹینیو رہتا ہے جب تک کہ ہم جلال کا بدن نہیں لے لیں گے، until we get glorified۔ یہ جو mortal body ہے until it becomes mortal, believe me یہ فنا کا جامہ جب تک بقا کا جامہ نہیں پہنے گا، ہر روز خوبصورتی کے عمل میں سے گزرنا ہے، آمین۔ اور خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے یہ پاک کلام ہے، اور یہ پاک کلام سمجھ لیجئے یہ آپ کی لپسٹک ہے، یہ آپ کا سرمہ ہے، یہ آپ کا بناؤ سنگھار ہے، یہ آپ کا جامہ ہے، یہ آپ کے کپڑے ہیں، یہ آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یقین جانیے خوبصورتی نہیں ہے۔ اور یہ خوبصورتی وہ ہے جو باطن سے شروع ہوتی ہے، it begins on the inside، یہ اندر سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر سے ظاہر ہوتی ہے، اندر سے شروع ہوگی اور ظاہر سے ظاہر ہوگی، اور اگر یہ اندر سے شروع نہیں ہوتی تو ظاہر سے ظاہر بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کا باطن جو ہے آپ کا ظاہر بن جائے گا تو یقین جانیے تبدیلی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن، آمین جی۔ آئیے ایک کلمہ کی طرف بڑھتے ہیں، آگے دیکھیے یسوع مسیح کا پہلا کلمہ صلیب پر جو خدا یسوع مسیح نے بیان کیا، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 23واں باب، چونتیسویں آیت پڑھیں گے۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، آمین جی۔ معافی کا کلمہ ہے، معافی کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سکھایا اور بہت کچھ جانا ہے، اور یہ جو معافی ہے یہ ایک ایسا میسج ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اس معافی کے تعلق سے، forgiveness کے تعلق سے اپنی ڈیلی لائف میں سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ it is the heart of God،
मुआफी जो है ये खुदा का दिल है. And Jesus said, "Oh Father, forgive them." इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. दूसरा कलमा निजात का कलमा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा. तीसरा कलमा, ऐ औरत ये तेरा बेटा, मोहब्बत का कलमा. चौथा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. पांचवा, मैं प्यासा हूं. छठा, तमाम हुआ. सातवां, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं. मगर ये सातों के सातों कलमे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. अगर सलीब पर 7 कलमे यीशु मसीह ने बयान किए थे, तो सलीब के नीचे जो लोग थे उन्होंने भी यीशु मसीह के ताल्लुक से 7 ही बातें की हैं. और वो मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने 7 बातों का जवाब भी दिया. मगर यीशु मसीह ने, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जो लूका किस तरह से यीशु मसीह के उस पहले जुमला को रकम कर रहा है. Father forgive them. अब वो किनके लिए माफी की बात कर रहा था? जो उसके कपड़ों के हिस्से कर रहे हैं, जो उस पर कूड़ा डाल रहे हैं, जो उसके मुंह पर थूक रहे हैं, जो उसे रुकेद रहे थे, जो उस पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो उस पर सियासत कर रहे हैं, जो उसे भाला मारने वाले हैं, जो उसे उस तमाम प्रोसेस में से गुजार रहे हैं. और यीशु मसीह उनके ताल्लुक से कह रहा है, बाप इनको मुआफ कर. अब क्यों, क्या वजह मुआफ क्यों किया जाए? अगला हिस्सा आयत का ये कहता है क्योंकि because they don't know what they are doing. अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक ऐसा शख्स जिस पर दुखों के पहाड़ गिरा दिए गए हो, अगर मेरे मुंह पर एक कोई थप्पड़ मारे तो शायद मैं उस कर्म से बाहर ना निकल सकूं जो उस थप्पड़ से ज्यादा मेरे अंदर लगा हो, उस थूक से ज्यादा जो दुख मेरे अंदर से मुझे छेद कर गया हो, उन कोड़ों से ज्यादा जो मेरे बातन को तार तार कर गया हो. थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर कोई मेरे और आपके मुंह पर थप्पड़ मार दे, अगर मुझे और आपको कोई बुरा भला कहे, अगर मेरे और आपके खिलाफ कोई चालबाजियां करे, अगर साजिशें करे, आपको रुके दे, आपकी बाबत नाहक बातें कहे, तो आप किस तरह के दुख से गुजरेंगे? Try to put yourself into the shoes of Jesus and then relate yourself. और फिर देखें कि यीशु मसीह एक बड़े अमल में से गुजर रहा है. गतसमनी से लेकर बाले गतसमनी में, जहां उसके अपने शागिर्द ने उसे चंद सिक्कों की खातिर अपने लालच की नजर कर दिया है. और ना सिर्फ वो यीशु मसीह को नजर कर रहा है, बल्कि अपने किरदार को नजर कर रहा है. चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर उस लालच ने उसे इतना, कह लीजिए, गुमराह किया है कि उस लालच, और ये लालच सिक्कों का, ये लालच इज्जत का, ये लालच बनाओ सिंहार का, ये लालच धोखा दही का, किसी भी किस्म का लालच है, यकीन जानिए ये मुझे या आपको, हर उस शख्स को कह लीजिए खाक चाटने पर मजबूर कर देगा, जिस तरह उसने यहूदा को किया. और गतसमनी में यीशु मसीह का रवैया और अमल और किरदार देखे, जब उसने देखा कि उसका अपना जो है, उसे मालूम था कि जो उसके प्याले में हाथ डालेगा वही उसे पकड़वाने वाला है. उसे मालूम था कि गतसमनी में उसके साथ कौन क्या करने वाला है. उसका बोसा लेकर, उसका मुंह चूम कर, कौन उसकी कमर में छुरा घोंपने वाला है.
اسے معلوم تھا. اور یہ سب سے بڑے کرم کی بات ہے کہ جب آپ کا اپنا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے, جسے آپ نے چنا ہو, جسے آپ نے آواز دے کر بلایا ہو کہ میرے پیچھے ہو لے. And he was one of them, one of the 12 disciples. انتہائی خطرناک کام ہے کہ میرے اور آپ کے سرکل میں جب میرے اور آپ کے اپنے میرے اور آپ کے خلاف کھڑے ہوں اور یہ سوچ رہے ہوں کیا میں اپنی لالچ کی نظر اپنے رشتہ کو کر دوں گا, تو انتہائی خطرناک بات ہے. یہودا نے اپنے لالچ کی نظر کر دیا اس رشتے کو. یہودا نے اپنے لالچ کی نظر کر دیا اس شخص کو جس نے یہودا کو اپنے 12 کا حصہ, اپنی 3 کا حصہ بنایا ہوا ہے. And that was a message. اور گتسمنی میں وہ کس طرف سے گزر رہا تھا آپ کو معلوم ہے. اپنوں کا دکھ اپنوں کے دیے زخم زیادہ تنگ کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا, Father, if it's possible, take away this cup. اس کپ کو مجھ سے ہٹا لے. But yet, because I'm your son, I'm out of you, and I ask you, Father, not my will, but yours will be done. I know my own companions, I know my own people, I know my own disciple is going to behave like an enemy. But yet I want you کہ تو اس کپ کو جو دکھوں کا, مصیبتوں کا, تکلیفوں کا, زیادتیوں کا اور سب سے بڑا دھوکے دہی کا, اسے مجھ سے ہٹا لے. But yet I want you to do your will. تو اپنی مرضی پوری کر. اور یہ گتسمنی سے جو پروسیس ہے دکھوں کا, سفرنگ کا, ظلم و استبداد کا, یہ قبر تک جاری رہا ہے. اور اس طرح کے عمل میں سے گزرنے کے بعد آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کیا ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو آپ اس کے حق میں یہ کہیں, اے باپ بہنی کو معاف کر دے, اے باپ رومل کو معاف کر دے, اے باپ جمشید کو معاف کر دے, اے باپ اسے معاف کر. ہاں اس نے وہ کیا جو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کیا جو قرہ ڈال رہے تھے انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اس کے کپڑوں پر حصہ ڈال رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں؟ سنہیڈرن کو نہیں پتا, اس وقت کے اسکالرز کو نہیں پتا, فقیوں اور فریسیوں کو نہیں معلوم, کیا رومیوں کو نہیں معلوم, کیا پلاطوس کو نہیں معلوم جو اپنے ہاتھ دھوتا ہے. Each and every one of them knew everything. But وہ کیا نہیں جانتے تھے, انہیں کیا معلوم نہیں تھا. انہیں معلوم تھا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں, انہیں معلوم تھا کہ وہ اس شخص کو جو راست باز ہے اور اس راست باز کی راست بازی کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں. جب کسی راست بازی کی راست بازی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے کچلی جائے, جب آپ کا اچھا عمل پاؤں کے نیچے کچل دیا جائے, آپ کی محبت کا برملا تماشا بنایا جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے اب آپ انہیں معاف کر دیں؟ Too hard. میرے لیے ممکن نہیں ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی مجھے صلیب پر کھینچ لے اور میں کہوں کہ باپ اسے معاف کر. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. But remember, خدا مجھ سے اور آپ سے, اپنے بچوں سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم معاف کریں. اگر وہ معافی کا خدا ہے تو معافی کا درس دیتا ہے. تم ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو. Is it not what Bible says? کہ تم ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو. یسوع نے کہا باپ ان کو معاف کر. اور یاد رکھیے اس کا مطلب ان لوگوں کا
रिलेशनशिप जो है वो बाप के साथ नहीं है, मगर यीशु मसीह का इस कठिन मरहला में भी रिलेशनशिप बाप के साथ इतना मजबूत है कि वो एडवोकेसी उन लोगों के लिए कर रहा है जो उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों के बिहाफ पर बोलेंगे जो आपसे ज्यादती कर रहे हो? लेट्स डू इट। Praise God. Let's do it. यीशु मसीह का जो बाप के साथ रिलेशनशिप है, अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, बाप जो वो जस्ट है अपनी जजमेंट में, अपने इंसाफ में वो रास्तबाज है। उसे मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा बाप जो वो रास्तबाज है। उसे मालूम है कि मेरा बाप जो वो इंसाफ वाला है। उसे मालूम है कि जो कुछ ये मेरे साथ बतौर इंसान कर रहे हैं, इन्हें इसका इवजाना या अजर जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले कि बाप कोई अमल करे, बेटा खुद अमल करने पर तैयार। इससे पहले कि बाप जो है वो उन पर गजब नाजिल करे या आने वाली उनकी नस्लों पर कोई लानत करे या आने वाले वक्तों में उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करे, बाप ये काम करने वाला, मगर बेटा पहले से इंटरवीन कर रहा है, पहले से मुदाखलत करते हुए खड़ा हो रहा है कि देख तूने तो मुझे एडवोकेट बनाकर भेजा है, देख तूने मुझे वकील बनाकर भेजा है, मैं इनके लिए आया हूं, मैं इनके लिए जान दे रहा हूं। मैं उनके लिए नहीं जो खुद को रास्ता समझते हैं, बल्कि उनके लिए जो अपनी नाराजगी में भी मेरे खिलाफ है। मैं इनके लिए आऊं, तू इन्हें माफ कर। और थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या सलीब से किसी ने माफी मांगी नीचे से? किसी कोड़े मारने वाले ने कहा कि यीशु मसीह मुझे माफ कर देना? मुझे मेरे हाकिम ने कहा था तुझे कोड़ा मारने के लिए। हरगिज़ ऐसा नहीं। हम कहते हैं कि जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं माफ नहीं करूंगा। बट द स्टैंडर्ड ऑफ फॉरगिवनेस ये नहीं है कि कोई मुझसे माफी मांगे, आप दिल से उसे माफ कर दें। दैट्स इट। कि खुदावंद तू इन्हें माफ कर, इन्हें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है फॉरगिवनेस का। और यीशु मसीह ने सलीब पर एक जनरल फॉरगिवनेस का ऐलान किया, पूरी बनी नौ इंसान के लिए फॉरगिवनेस का ऐलान किया। जिस तरह से यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा कि ये खुदा का बर्रा, किसका बर्रा? खुदा का बर्रा जो, फिर बोलिएगा ऊंची आवाज में बोले, जहान के गुना नहीं, जहान का गुना, जस्ट वन सिन ऑफ द वर्ल्ड। और जहान का गुना क्या है? वो गुना जो आदम में हवा और आदम से सरजद हुआ, और वही गुना तमाम बनी नौ इंसान को जो वो अफेक्ट करता है। उसे गुनाह से छुटकारे के लिए ये खुदा का बड़ा जो सलीब पर मौजूद है, वो ये कह रहा है कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या मेरे और आपके पास दुखों के एक बड़ी खेर में किसी के लिए शिफायत करने का जज्बा है? यीशु मसीह शिफायत कर रहे हैं, भरे दुख में, भरी मुसीबत में, जुल्म इस्तिबदाद का बड़ा बाजार करना, मगर फिर भी वो क्या कर रहे हैं? शिफायत कर रहे हैं। और आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं करते। Can you do that? No, not at all. आप जिससे मोहब्बत नहीं करते, आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। और अगर आप दिखावे के लिए दुआ करेंगे भी, तो वो यहां से होगी, यहां से नहीं होगी। तो यीशु मसीह जो है वो यहां से दुआ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुदा का बर्रा है। क्यों? क्योंकि ये वो है जिसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है, और अपनी इसी मोहब्बत में मोहब्बत का वो सबूत देकर गया है। उसने कहा अब आप इनको माफ कर। किसे? मुझे माफ कर रहा है, आपको माफ कर रहा है, सबको माफ कर रहा है। और ये जनरल, कह लीजिए यूनिवर्सल फॉरगिवनेस थी, आलमगीर मुआफी थी। मगर ये आलमगीर मुआफी उसे मिलती है जो इस मुआफी को कबूल करता है।
याद रखिएगा, जो इस मुआफी को कबूल करेगा और कहेगा बाप देख मेरी एडवोकेसी मेरे यीशु मसीह ने सलीब पर की है, मेरी वकालत मेरे यीशु मसीह ने सलीब पर की है, अब मुझ पर किसी खता का जोर नहीं है, आमीन, तो फिर मैं और आप मुआफ कर दिए जाएंगे। सलीब पर जो मैसेज मेरे और आपके लिए है वो मुआफी का मैसेज है। और किसने इस मैसेज को इमिटेट किया पूरे का पूरा? कौन है जो भरपूर तौर पर इस मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है? कौन है? क्या मेरे और आपके लिए मुमकिन है? मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। स्टीफनस पहला फर्द है दुनिया में जिसने इस पूरी की पूरी मुआफी के मैसेज को अपनी लाइफ में अलाउ किया है। ईमान की किताब में आप देखें कि स्टीफनस वो शख्स है जिससे संसार किया जा रहा था, मारा जा रहा था, और वो क्या कह रहा था? अब आप इन्हें माफ कर, अब आप इन्हें माफ कर। तो अगर यीशु मसीह मेरे लिए आइडियल है तो स्टीफनस ने ये साबित किया करके कि ये मेरा आइडियल है। उसने उस कामिल करने वाले और पाक करने वाले को मुकम्मल टका नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में जगह दी है। और जब स्टीफनस कह रहा था ना अब आप इन्हें मुआफ कर, तो यकीन जानिए उसमें यीशु मसीह बेसिकली कह रहा था। आप जब किसी को मुआफ करते हैं तो आप यीशु मसीह को अलाउ करते हैं कि वो आप में से बोले। याद रखिए ये जो कलमा है मुआफी का, यीशु मसीह की आखिरी लाइफ के आखिरी हिस्सों की वसीयत समझकर इसे कबूल करें कि खुदावंद आज के बाद मैं भी मुआफ करूं, मैं भी मुआफ करूंगी। मुश्किल काम है बट नामुमकिन नहीं, तकलीफ ने काम है मगर अजर इसका बड़ा है मुआफी का। क्योंकि किताब इंसान की किताब में पढ़े तो लिखा है जब आप किसी को मुआफ करते हैं तो उस शख्स पर कोयलों का दाबड़ा नहीं दे, कोयला पर क्यों मुआफी आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं। किससे? उस कर्म से, उस दुख से जो आपको आपके जानने वाले और मोहब्बत करने वाले ने दिए। मुआफ करके आप अपने आप को तो आजाद कर देते हैं मगर जिसे आपने मुआफ किया आपको मालूम नहीं है कि जब तक वो उस मुआफी को कबूल नहीं करता वो कितने कर्म में से गुजरेगा। आइए मुआफी की तरफ चले। आइए उससे कहते हैं मुझे मुआफ कर, हर उस शख्स को मुआफ कर दे जिसने मेरा गुनाह किया। आइए अपने सर पूछते हैं, आइए उससे कहें खुदावंद मैं जानती हूं कि यह बड़ा मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं है। तूने करके दिखाया है, तूने साबित किया है कि इट्स पॉसिबल। हर उस शख्स के लिए मुमकिन है मुआफ करना जिसने तुझे अपनी लाइफ में अलाउ किया। तकलीफ दे काम है मगर हम हर रोज सीखते हैं। आपका उस बाप के साथ रिलेशनशिप है जो आपके बिहाफ पे झगड़े करेगा। अगर आपको किसी ने दुख दिया तो वो आपके खातिर लड़ेगा मगर उत्तम बात है बेटे को मालूम था कि बाप उनके खिलाफ खड़ा होगा मगर बेटा इससे पहले कि बाप अपनी जजमेंट दे खड़ा होता और कहता बाप इन्हें मुआफ कर दे। क्यों? क्योंकि उससे मोहब्बत है दुनिया से। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और जो बेटा उसने बख्शा है वो वकालत कर रहा है, वो मेरे और आपके हाथ पे जंगे कर रहा है, वो आपकी और मेरी मुआफी के लिए फाइट कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है। और मैं और आप इसीलिए आज आजाद है, मेरे और आपके गुनाह इसीलिए मुआफ किए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मुआफ किया। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
मुआफी जिसे मिल जाएगी और जो मुआफी को कबूल करेगा फिरदौस के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। आपने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और आपके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए और उसके पास इख्तियार मौजूद है कि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे अपने उस कफारे, अपनी उस मुआफी की वजह से जो उसने सलीब पर दी है। और उसने उस मुआफी और निजात के साथ जिन्हें मुआफी और निजात मिली है उनके लिए जमीन पर मोहब्बत का दर्स का ऐलान किया कि यूहन्ना ये तेरी माँ है, ऐ औरत के तेरा बेटा है। जिन्हें मुआफी मिल जाए, जिन्हें मुआफ कर दिया जाए, खुदा चाहता है कि मुआफी देने और मुआफी पाने वाले एक दूसरे के साथ इस धरती में रिलेशनशिप में मजबूत हो जाए। जिस तरह उसने मोहब्बत की, मैं और आप भी उसी तरह एक दूसरे से मोहब्बत करें। और जो रिश्ते सलीब के नीचे बनाए जाते हैं उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये सब काम उस कफारे की बदौलत हुआ है जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिया। उसने कहा बाप, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस जुज़वी सेपरेशन, जुज़वी जुदाई को उसने इसलिए बर्दाश्त किया था कि मेरा और आपका मेल मिलाप करवा दे। और आज जिनका उसने मेल मिलाप करवाया उनसे वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। अब मेरे बेटे और बेटियों, दूसरों तक मुआफी के पैगाम को लेकर जाओ, दूसरों तक निजात के पैगाम को लेकर जाओ, दूसरों तक मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाओ, दूसरों तक कफारे के पैगाम के लेकर जाओ, क्योंकि मैं प्यासा हूं। और मेरे पास सबको लेकर आओ, थके मांदे बोझ के दबे वो मेरे पास आओ। ऐसा भी औरत अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। आइए, वो चाहता है कि बचे हुए बचाने का काम करें। क्यों? क्योंकि उसने सलीब पर तमाम कर दिया है। उसने मेरे और आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है निजात के लिए। He said it's finished, it's done now. Father, I have done everything on the behalf of the people. From now on, they are delivered. They're not doing anything for the sake of their salvation. It's finished. तमाम हुआ। अब मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारे वास्ते सब कुछ तमाम कर दिया है। जो काम आसमान से शुरू हुआ, जमीन पर जाहिर हुआ, सलीब पर उसका शादियाना ऐलान किया गया। कब्र में उतरने और जी उठने के बाद निजात की रागनियां अलापता हुआ निकला। वो आपसे और मुझसे कह रहा है तमाम हुआ। और जब वो सब कुछ तमाम कर लेता है तो फिर कहता है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। बिकॉज जो कुछ तूने मुझे दिया था मैंने कर लिया। It's time to come back. It's time to go home. अब ये घर जाने का वक्त है। इस ह्यूमन बॉडी में जो कुछ तूने मुझे दिया था बतौर बेटा करने के लिए I done it being an obedient son. और मुझसे और आपसे देखें, सुनिएगा निजात याफ्ता लोगों, मुझसे और आपसे वो कह रहे हैं इन सातों कलमों को पूरा करो अपनी जिंदगी में। माफ करना सीखो, निजात के काम के लिए भाग दौड़ करो, मोहब्बत का प्रचार करो, कफारे का ऐलान करो, उसकी प्यास को पूरा करो और तमाम हुए का ऐलान करते हुए कहिए कि खुदावंद मैं आ रहा हूं। जो कुछ तूने मुझे दिया था करने के लिए मैंने कर दिया है। अब मेरे रेस्ट का वक्त है, अब मेरे आराम का वक्त है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, निजात के बानी मंबा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं तेरी इस खूबसूरत जमात के लिए और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। हम सबको छू ब्लेस कर बरकत है। और आज खुदावंद जो यादगिरी हमने तेरी की है, खुदावंद फजल दे कि सिर्फ ये महज यादगिरी ना हो, ये मेमोरेंडम ना हो, बल्कि मेरे खुदावंद मेरी और खुदावंद हम सब की जिंदगियों के लिए तरस हो। और वो तरस
जो हर कदम हमारी रहनुमाई करे, हमें शेप अप करता चला जाए, हमें मेकअप करता चला जाए, हमें संवारता चला जाए, हमें बनाता चला जाए और हमारी जिंदगियों से तू ग्लोरीफाई हो। क्वाइल के लिए शुक्रगुजार हो, इन बेटे बेटियों के लिए शुक्रगुजार हो जिन्होंने आज तुझे धन्यवाद कहा है। मस्बा पर काम करने वाले एक फर्द के लिए शुक्रगुजार हो और सारे चर्च के लिए शुक्रगुजार हो। इस छोटे से गल्ला को अपने हाथों में ले। तूने कहा है छोटे गल्ले ना घबरा, बाप को पसंद आया कि वह तुम्हें बादशाही दे। छोटे गल्ले, वर्टिकल लाइफ, छोटा गल्ला मगर बादशाही का गल्ला है। इसका थैंक यू जीसस फॉर योर लव, यीशु मसीह के नाम से आमीन।